پی ٹی آئی دور میں ریکارڈ کرپشن کی گئی. دوست ملک سے تحفے میں ملنے والی نادر گھڑی بیچ کر ملک کی وقار کا مذاق اڑایا گیا. عمران خان چاہتے ہیں سارے شور میں ان کی کرپشن دب جائے. بڑھ کے مارنے سے بات ختم نہیں ہوگی. توشہ خانے کے معاملے کو انجام تک پہنچایا جائے گا. آئین، قانون اور قاعدے کے تحت کارروائی ہوگی. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف. عمران خان کو فورن فنڈنگ، کرپشن اور منی لانڈرنگ کا جواب دینا ہوگا. گھڑی 2 کروڑ کی خریدی اور ہینڈلرز کے ذریعے 28 کروڑ کی بیچی. پیسے منی لانڈر ہو کر پاکستان آئے اور ڈکلیئر نہیں کیے گئے. پاکستان، دبئی، مریخ یا پھر چاند، جہاں کہیں بھی مقدمہ کرے رسیدیں تو دینا پڑیں گی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب. اتحادی حکومت ملک میں سیاسی استحکام چاہتی ہے. عمران خان کے سیاسی انتشار کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. فورن فنڈنگ سے ہونے والے لانگ مارچ کا مقصد ملک کو کمزور کرنا ہے. ملکی اداروں کو کسی صورت تضحیک کا نشانہ نہیں بننے دیں گے. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس. عمران خان کا ہر روز ایک نیا یو ٹرن قوم کے سامنے آ رہا ہے. سازشی بیانیے کے تحت اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی. عسکری قیادت پر بے بنیاد الزامات لگائے. غیر ملکی تحائف بیچ کر آمدن الیکشن کمیشن سے چھپائی اور اس پر ٹیکس بھی ادا نہیں کیا. مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ اور معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس. دوسروں کو چور کہنے والا سب سے بڑا چور نکلا. ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، رسیدیں نکالو. گھڑی کس کو بیچی، نام بتاؤ. پیسہ پاکستان کیسے منگوایا، یہ بھی بتانا ہوگا. نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز. معاشر اقتصادی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے. جمہوری عمل کے تسلسل سے صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اہم ملکی معاملات میں متعلقہ فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانا ضروری ہے. فیک نیوز کو کنٹرول کرنے کے طریقوں پر غور کرنا ہوگا. سوشل میڈیا میں صرف مستند اور حقائق پر مبنی معلومات پر ہی یقین رکھنا چاہیے. صدر ڈاکٹر عارف علوی کی کراچی میں سینئر صحافیوں سے گفتگو. لکی مروت میں پولیس وین پر دہشت گردوں کی فائرنگ. اے ایس آئی سمیت 6 اہلکار شہید. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت. قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. مادر وطن کی حفاظت کے لیے جانوں کو نذرانہ دینے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت. باجوڑ کے علاقے ہلال خیل میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. ایک دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. فائرنگ کے تبادلے میں نائک تاج محمد اور لانس نائک امتیاز خان شہید ہو گئے. علاقے سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلین اپ آپریشن جاری. ISPR. مصر میں COP 27 اجلاس کے موقع پر پاکستان میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے متعلق بریفنگ. سیلاب سے $30 ارب سے زائد کا نقصان، سینکڑوں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. انفراسٹرکچر اور مواصلات کا نظام درم بھرم ہوا. متاثرین کی آبادکاری کے لیے منصوبہ بندی کر لی گئی ہے. امید ہے کہ عالمی برادری تعمیر نو اور بحالی کے کاموں میں پاکستان کی مدد کرے. وفاقی وزیر احسن اقبال. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا ترک اور ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. استنبول میں دہشت گرد حملے پر اظہار افسوس. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ترکیہ کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ. ایرانی وزیر خارجہ سے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کراچی میں جاری دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کا دورہ. سٹالز کا معائنہ کیا. مختلف ملکوں کے وفود سے ملاقات. ملیر گیریجن کے دورے کے موقع پر افسروں اور جوانوں سے ملاقات. آرمی چیف نے جوانوں کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور فرائض کی ادائیگی کے جذبے کو سراہا. یادگار شہداء پر پھول چڑھائے. کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کا دوسرا دن. پاکستانی مصنوعات مرکز نگاہ. دفاعی سامان کی خریداری سے متعلق مختلف یادداشتوں پر دستخط. سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا نمائش کا دورہ. پاک فضائیہ کے پویلین میں جدید ٹیکنالوجیز کا جائزہ لیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی. ماورائے عدالت قتل روز کا معمول بن گئے. بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں نظر بند حریت رہنماؤں کی حالت ابتر. عالمی برادری نہتے کشمیریوں کی حالت زار کا نوٹس لے.
کل جماعتی حریت کانفرنس۔ پولینڈ میں یوکرین کی سرحد کے قریب میزائل گرنے سے 2 افراد ہلاک، سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ روس کی جانب سے کوئی میزائل نہیں داغے گئے، روسی وزارت دفاع۔ امکان ہے کہ میزائل یوکرین کے ایئر ڈیفنس نظام سے فائر کیا گیا، پولینڈ کے صدر کا رد عمل۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا تیسری مرتبہ امریکی صدارت کا الیکشن لڑنے کا اعلان، فلوریڈا میں خطاب کے دوران بائیڈن انتظامیہ کی پالیسیز پر شدید تنقید۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور میں امریکہ کو ناکام کیا، صدر جو بائیڈن کا رد عمل۔ Again, there's no pace on the Again, just shuffling around. Aisha Naseem. Oh, she's bowled out. Around the wicket, appeal. آئرلینڈز ویمنز ٹیم کی پاکستان کے خلاف تیسرے T20 میچ میں 34 رن سے کامیابی، سیریز 2-1 سے جیت لی۔ 168 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ویمنز ٹیم 133 رنز پر آؤٹ۔ سیریز پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھائی گئی۔ میں فٹ بال ورلڈ کپ کے آغاز میں صرف 4 دن باقی، ٹیموں کی آمد اور پریکٹس سیشنز کا آغاز۔ ورلڈ کپ ٹرافی کی نمائش، مقامی اور انٹرنیشنل شائقین نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنائی۔ السلام علیکم، نیوز اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ رات 9 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں شاہد نسیم اور میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات شیئر کریں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ہمارا رہبر سب سے بہتر، فرام دا ہاؤس آف ایگل سٹار اینڈ رہبر۔ خوشحال ہوگا کسان تو ترقی کرے گا سارا بلوچستان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر قیادت اور صوبائی وزیر زراعت کی نگرانی میں حکومت بلوچستان کا شعبہ زراعت کی ترقی کے لیے انقلابی اقدام۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع کے کسانوں کو گندم کے معیاری بیجوں کی بلا معاوضہ تقسیم کا آغاز۔ پروگرام کے لیے 2.2 ارب روپے کا اجرا، جس سے صوبے کے 34 اضلاع کے 1 لاکھ سے زائد کسان مستفید۔ بذریعہ ٹینڈرنگ گندم کے بیجوں کی 50 کلو گرام کی 3,81,000 بوریوں کی خرید۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ زراعت کے ذریعے مستحق کسانوں کو بیجوں کی فراہمی۔ میں مال مویشی تباہ بھی شو، زمین تباہ بھی شو، اور ماں وزیر شکر گزار ہوں ہمارے مار گندم بیج داد زمین آباد کھنوں۔ ابا مہربانی بدا مالا ہے دا گورنمنٹ مہربانی خدا مارے بوری بانے بیجے میں لگا جو خوشوں اور بلوچستان دا گورنمنٹ لا طرف از خمر دے دا شکریہ ادا کو شمر تبارشو تاوان کړی دي دغه مبارک انتظامیہ ګرد زمر زراعت والا سره مستسق تعاون راکړي۔ ممتاز احمد پنے کنا ساسو لیلا کا تعلق کنا اور دا پیکیجز بسنے حکومت طرفان۔ وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کی نگرانی میں گندم کی بیجوں کی شفاف تقسیم۔ پروگرام کا مقصد سیلاب کے بعد گندم کی قلت کے خدشے کا خاتمہ اور گندم کی زیادہ سے زیادہ کاشت کو یقینی بنانا ہے۔ زرعی بحالی کے لیے پرعزم محکمہ اطلاعات، حکومت بلوچستان۔ ہمارا رہبر سب سے بہتر، ٹھنڈے کو ٹھنڈا اور گرم کو رکھے گرم، فرام دا ہاؤس آف ایگل سٹار اینڈ رہبر۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ عمران خان توشہ خانہ میں سامنے آنے والی کرپشن کا معاملہ دبانا چاہتا ہے، قانون کے مطابق اس معاملے کو انجام تک پہنچائیں گے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس شخص کی جانب سے بے ضابطگیوں کا سلسلہ نیا نہیں، PTI دور میں ریکارڈ کرپشن کی گئی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ عمران خان عدالت جائیں، ان کی بددیانتی ثابت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بڑھ کے مارنے سے بات ختم نہیں ہوگی، عمران نیازی کو جواب دینا ہوگا۔ اس شخص نے جو ہے پوری کوشش کی کہ پاکستان تباہ ہو جائے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان ایک دیوالیہ پن کے گڑھے میں گر جائے جہاں سے وہ نکل نہ سکے تاکہ اس کی حکمرانی واپس آ سکے۔ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے مال جو ہے وہ خورد برد کیا ہے، اور جو الزامات ان کے خلاف جو ہیں وہ صحیح ثابت ہوئے۔ الزامات کے نتیجے میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ کل جو سکینڈل جو ہے وہ ہوا ہے، سامنے آیا ہے،
اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں گھڑی بیچی، باہر کسی ملک میں دبئی میں جا کے بیچی. وہ ایک بہت بڑے ہمارے جو دوست ہیں سعودی عربیہ کے ولی عہد اور وزیر اعظم سے وہ جو ہے دی گئی ہوئی تھی گھڑی تحفے کے طور پہ. تحفے کی ایک اپنی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے اس کا. ایک اور خصوصاً ایک دوست ملک کے سربراہ نے دیا ہے، اس کو بندہ ساری عمر چیرش کرتا ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز نے ان کو بھی مینیپولیٹ کیا، کبھی 20% کر دیا جب خود لینا تھا، کبھی 50% کر دیا، اور ڈیٹس جو ہے اس طرح مینیپولیٹ کی کہ تاکہ یہ 20% پہ خرید سکیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں سے انہوں نے پیسے لیے اور جب ڈپازٹ کرائے جو ہے حکومت کے خزانے میں جو پیسے انہوں نے ڈپازٹ کرائے ان کی ڈیٹس کیا ہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کو عدالت جانے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ بس بہت ہو گیا، فورن فنڈنگ، کرپشن اور منی لانڈرنگ کا جواب دینا ہوگا. ایک بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے 2 کروڑ کی گھڑی خرید کر ہینڈلرز کے ذریعے 28 کروڑ کی بیچ دی. پیسے منی لانڈرر ہو کر پاکستان آئے اور ڈکلیئر نہیں کیے گئے. عمران خان پاکستان، دبئی، مریخ یا پھر چاند جہاں کہیں بھی مقدمہ کریں، رسیدیں تو وہاں بھی دینا ہوں گی. وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان بڑھ کے نہ ماریں، سوالوں کے جواب دیں اور عدالت جانے کی تاریخ کے ساتھ گھڑی بیچنے کی رسید بھی ٹویٹ کریں. انہوں نے کہا کہ عمران خان بتائیں کہ گھڑی کے پیسے پاکستان کون لایا اور کیسے لایا. عمران نیازی کے ہینڈلرز فراگوگی اور شہزاد اکبر پکڑے گئے ہیں. وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان نے دوسروں پر جھوٹے الزامات لگائے اور خود رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر کہتے ہیں کہ بے بنیاد الزام ہیں. مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے جھوٹے الزامات پر سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے توشہ خانہ کیس کے کسی نوٹس کا جواب نہیں دیا اور کسی تفتیش میں شامل نہیں ہوئے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ملکی اداروں کی تضحیک کسی صورت برداشت نہیں. عمران خان کے سیاسی انتشار کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. یاسر حسین رپورٹ کریں گے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک کے اندر انتشار اور اضطراب کو بڑھانے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں. 3.5 سالہ نااہل عمرانی دور کی وجہ سے ملک مشکل حالات سے دوچار ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک کے دفاعی ادارے بھی عمران خان کی جارحیت سے محفوظ نہیں. دشمن ملک جارحیت کر کے وہ پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا کہ یہاں ملک کے اندر عمران خان نے دشمن کا نمائندہ بن کر داخلی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے. ہم ملکی اداروں کو، اس کی عزت و وقار کو کسی طریقے سے بھی نہ ملک کے اندر تضحیک کا نشانہ بننے دیں گے اور نہ ہی ملک سے باہر. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان کی ناقص پالیسیوں سے ملک دیوالیہ پن کے دھانے پر پہنچا. عمران خان نے اندرونی جارحیت سے ملک دشمنی کا ثبوت دیا. ملک کی سلامتی کے لیے قوم یکجہتی کا مظاہرہ کرے. پی ڈی ایم کے سربراہ نے کہا کہ عمران نیازی نے جھوٹے سازشی بیانیے سے اپنی مقبولیت بڑھانے کی کوشش کی. آج وہ بین الاقوامی سازش کہاں گئی؟ وہ جو کاغذ لہراتے تھے، جھوٹا کاغذ، امریکی سازش ہے، امریکی سازش ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ قصہ پارینا ہے. امریکہ 2 دن پہلے دشمن، آپ کے خلاف سازش کرنے والا، آج آپ ناک رگڑ کر اس کے ساتھ دوستی کی، پینگے بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں. کھل گئی نا آپ کے بیانیے کی حقیقت. جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان نے دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کیا. اتحادی حکومت ملک میں سیاسی استحکام کے لیے اقدامات کر رہی ہے. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ اور معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ملک کو معاشی، سیاسی اور خارجہ محاذ پر کمزور کرنے والے عمران خان کا ہر روز ایک نیا یو ٹرن سامنے آ رہا ہے. چند کروڑ روپے کے عوض غیر ملکی تحائف بیچ کر ملکی وقار کا سودا کرنے والے نے تحائف سے حاصل آمدن الیکشن کمیشن سے چھپائی اور اس پر ٹیکس بھی ادا نہیں کیا. تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اسد.
मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने मुआवन खसूसी फैसल करीम कुंडे के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खान साहब आए रोज नए नए शोशे छोड़ते रहते हैं। इमरान खान ने बैरूनी साजिश के अपने ही बयाने पर पहले कौमी सलामती समेत हर इदारे के खिलाफ हर्जा सराई की और अब इस नाम निहाद साजिश के मामले पर भी यू टर्न लेते हुए खुद ही मुस्तरद कर दिया। कमर जमान कायरा ने कहा कि दोस्त मुल्कों के सरबराहान ने इमरान खान को नहीं बल्कि पाकिस्तान के सरबराह को तहाइफ दिए थे। तमाम इमरान नियाजी ने कीमती तहाइफ औने पौने दामों बेच कर मुल्क की वकार का मजाक बनाया। एक दोस्त मुल्क को तोहफा दे और वो तोहफा बिक जाए बाजार में, वो नीलाम हो जाए, वो तोहफा नहीं नीलाम हुआ, वो तो पाकिस्तान की इज्जत नीलाम हुई। कमर जमान कायरा ने कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी गैर मुल्की तहाइफ मिले थे, ताहम उन्होंने वो मुनाफे की खातिर फरोख्त नहीं किए बल्कि उन्हें कानूनी तौर पर खरीद कर अपने जाती इस्तेमाल में लाए, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने तोशाखाना तहाइफ मामूली रकम देकर खरीदे और फिर उन्हें फरागोगी के जरिए दुबई में करोड़ों रुपए में बेच कर मुनाफा कमाया और टैक्स भी अदा नहीं किया। अब सवाल पैदा होता है कि वो तोहफा यहाँ से जब बाहर गया, एक्सपोर्ट हुआ, वो तो आपका एसेट था, डिक्लेयर हुआ, वहां बिका, डिक्लेयर हुआ, इतनी बड़ी रकम क्या बाहर कहीं पार्क हो गई है या पाकिस्तान में वापस आ गई है? और अगर पाकिस्तान में आई है तो क्या बैंकिंग चैनल से आई है या बैग में आई है? और जनाबे वाला अगर बैग में आई है तो ये कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली के बाइस सूबे में एक दफा फिर बदअमनी है और हालत यह है कि सूबे का इंतजामी सरबराह सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर अपने ही इलाके में कदम नहीं रख सकता। आज खैबर पख्तूनख्वा में जो बदअमनी है, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने घर नहीं जा सकता। आज उनके इलाके के लोग अमन के लिए मार्च कर रहे हैं, उनके लिए निकल रहे हैं कि हमें अमन चाहिए अपने इलाके में, अपने सूबे में। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कौम इमरान खान से पूछ रही है कि उनके बकौल सैलाब मुतासरीन के लिए जो 15 अरब रुपए इकट्ठे किए गए थे वो कहाँ खर्च हुए। अरसलान सदकटी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा है कि दूसरों को चोर कहने वाला मुल्क का सबसे बड़ा चोर निकला। उन्होंने कहा कि इमरान खान इधर उधर की बातें छोड़कर रसीदें निकालो, बताओ घड़ी किसको बेची और पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ घड़ी के मामले पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। बैरून मुल्क से मिलने वाले नायाब तोहफे बेचने, दरोगोई और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर साबिक वज़ीर आज़म को क्रिमिनल केस का सामना करना होगा। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि फरागोगी को वतन वापस लाने के लिए रेड वारंट जारी होंगे। तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सऊदी वली अहद से मिलने वाली 1 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत की नायाब घड़ी इमरान खान ने बेच दी। नायाब घड़ी के फरोख्त के मामले की तहकीकात FIA करेगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए। तो क्या ऐसी मजबूरी थी जिसके तहत सऊदी वली अहद का पाकिस्तान को दिया हुआ तोहफा आपने कैबिनेट डिवीजन को दी? इतने मासूम है आप, आपको एक घड़ी का सेट मिला, खाना काबा से डायमंड बनी हुई घड़ी थी, हमने खरीदी और बेची जरूर है। आपने 2 जराइम तस्लीम किए। उमर फारूक ज़हूर, सऊदी वली अहद ने जो घड़ी दी है वो टीवी पे दिखा रहा है पकड़ के, उसके पास वो घड़ी कैसे पहुंची है? सेल का 33 करोड़ रुपया कहां गया, किसके पास गया, कब गया, ये आपको बताना होगा। गवर्नमेंट जो केस रजिस्टर करने जा रही है ये क्रिमिनल केस होगा। इसको सेशन कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने मामला रेफर किया है उसमें भी उठाएंगे और उसके साथ साथ FIA की एक इंक्वायरी भी शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने कहा कि फरागोगी के रेड वारंट जारी कर रहे हैं। फरागोगी को वतन वापस लाकर मामले की तहकीकात कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि फरागोगी अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस हैं। फरागोगी ने अरबों रुपए की चोरी खान साहब के बिहाफ पे की थी और खान साहब इस रिंग के, इस गैंग के सरगना थे। फेडरल गवर्नमेंट अब उसका रेड वारंट जारी करने जा रही है और फरागोगी को पाकिस्तान हर हाल में लाया जाएगा ताकि ये तहकीकात मुकम्मल हो सकें। उनसे बहुत सारी तहकीकात करनी है जिसमें तोशाखाना भी शामिल है, बाकी भी उनके खिलाफ केसेस हैं जिसका वो जवाब देने से कासिर हैं आज तक। मुनाफिकत की सियासत, और ये है शख्स की हकीकत जो सारा दिन दूसरों की पगड़ियां उछालता है, सारा दिन दूसरों पे कीचड़ उछालता है और अपना किरदार ये है कि पाकिस्तान की सुबकी कराई पूरी दुनिया में कि एक दोस्त मुल्क से मिलने वाली घड़ी को बेच दिया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वजीराबाद में होने वाला हमला वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की नाकामी की वजह से पेश आया। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम रहे। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि माशी और इक्तसादी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। अहम मुल्की मामलात के लिए तमाम मुतल्लिका फरीकों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना ज़रूरी है।
कराची में एडिटर्स से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि जमहूरी अमल के तसलसल से सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने लोगों की मालूमात में भरपूर इजाफा किया है, ताहम हमें फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के तरीकों पर गौर करना चाहिए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सोशल मीडिया में सिर्फ मुस्तनद और हकायक पर मबनी मालूमात पर ही यकीन रखना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि गवादर बंदरगाह और दीगर मंसूबों से भरपूर इस्तेफादे के लिए ठोस इकदामात जरूरी हैं। नाज़रीन, लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर शिद्दत पसंदों की फायरिंग से 6 एहलकार शहीद हो गए। अब्बासा खटक में पेश आने वाले इस वाक़े में शहीद होने वालों में ASI, ड्राइवर और 4 कांस्टेबल शामिल हैं। शरपसंद अनासिर ने अलसुबह मामूल की गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर हमला किया। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स लकी मरवत में अदा की गई, जिसमें IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जा, आला सिविल और आला हुकाम शरीक हुए। शहदा को उनके आबाई इलाकों में सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने दहशतगर्दी के इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज और पुलिस ने दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी के साथ मुकाबला किया। शरपसंद अनासिर को किसी सूरत अमन ख़राब नहीं करने देंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कौम को अपने शहदा पर फ़ख्र है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में इस्लामाबाद में मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम से मुतल्लिक इजलास हुआ और इस इजलास में शहरियों को अपने घर की फराहमी आसान बनाने के लिए मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम में ढांचा जाती तब्दीलियों पर गौर किया गया। वज़ीर ख़जाना ने कम आमदनी और मुतवस्सित तबके को मुनासिब कीमतों पर रिहाइश फराहम करने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने मौजूदा प्रोग्राम में दरपेश मुश्किलात को हल करने की हिदायत की। शर्म शेख में जारी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत मौसमी तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों के लिए मुआविनत का ऐलान किया गया है। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस दुनिया भर में मुतासिर होने वाले तरक्की पजीर ममालिक की मदद के लिए कायम मौसमियाती खतरात की ग्लोबल शील्ड ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, घाना और दूसरे मुल्कों को मदद फराहम करने का ऐलान किया है। ग्लोबल शील्ड के सरबराह जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज ने तंजीम की जानिब से 17 करोड़ यूरो का ऐलान किया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत सैलाब मुतासिन की आबादकारी के लिए मनसूबाबंदी कर रही है। तामीर नौ और बहाली के कामों में आलमी बरादरी का ताउन दरकार है। तवक्को है कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस जनवरी में होगी। उन्होंने ये बात मिस्र के शहर शर्म शेख में जारी आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कही। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासिलात का निज़ाम दरम बरम हो गया। उन्होंने कहा कि अजला और मकामी हुकूमतों को कुदरती आफात से निमटने की सलाहियत की फराहमी के लिए लाहे अमल मुरतब किया जा रहा है। विफाकी वजीर इक्तसादी उमूर सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि पाकिस्तान की समाजी और इक्तसादी तरक्की में आलमी बैंक की मुआवनत अहमियत की हामिल है और ये किरदार मुस्तकबिल में भी जारी रहना चाहिए। इस्लामाबाद में आलमी बैंक के रीजनल डायरेक्टर बराए जनूबी एशिया जॉन रोम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा, ज़राअत, समाजी खिदमात और पायदार नमू समेत मुख्तलिफ शुबों में ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। मुलाकात में सिंध और बलोचिस्तान के सैलाबी इलाकों में बहाली और तामीर नौ के मनसूबों का जायजा लिया गया। विफाकी वजीर ने इन मनसूबों पर तेजी से अमल दरामद के लिए राब्ताकारी को मुअस्सर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वजारत इक्तिसादी उमूर इस बात को यकीनी बना रही है कि मनसूबों की मुअस्सर निगरानी हो और फंड्स का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सके। सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए कराची में इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस कुदरती आफत की वजह से मुतासरा इलाकों में गुर्बत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की बहाली और आबादकारी में बैन अल-अक़वामी बरादरी का ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने बताया कि सैलाब से हाउसिंग सेक्टर को 55% नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए 570 अरब रुपए की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तालीमी शोबे में 10% इमारतें तबाह हुई हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कराची एक्सपो सेंटर में नुमाइश के मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे। उन्होंने बहरीन, इटली, श्रीलंका, लीबिया, जिम्बाब्वे और मुत्तहिदा अरब अमारात के स्टॉल्स पर मौजूद नुमाइंदों से गुफ्तगू भी की। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ मुल्कों के दिफाई वफूद से अलहदा मुलाकातें भी की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मलिर छावनी का दौरा भी किया। उन्होंने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मलिर छावनी में अफसरों और जवानों से अलविदाई खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनके आला पेशा वराना मयार और फ़राइज़ की अदायगी के जज्बे को सराहा। उन्होंने हालिया तबाहकुन सैलाब के दौरान मुतासरीन की बेमिसाल मदद करने पर जवानों की तारीफ की।
मलीर छावनी आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। कराची में जारी बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 में पाकिस्तान में तैयार होने वाली दिफाई मसनूआत खुसूसी तवज्जो का मरकज़ हैं। तफसील बता रहे हैं ज़मीर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। दिफाई पैदावार के शोबे में पाकिस्तानी कंपनियां आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा रही हैं। अल खालिद टैंक और JF-17 थंडर तैयारों ने जहां आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया है, वहीं अल जर्रार और अल हैदर टैंक्स के लेटेस्ट एडिशंस भी अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और सेंसर्स की वजह से आलमी शोहरत हासिल करने को तैयार हैं। गाइडेड मिसाइल और रिमोट कंट्रोल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन अल हैदर टैंक को दूसरी टैंक से मुनफरद बनाती है। मौजूदा दौर के तकाज़ों और चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की दिफाई सनत में भी जिद्दत पैदा की जा रही है। सबसे पहले आपको डिज़ाइन एंड इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी अचीव करनी होती है, और जब आप ये अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को फिर आप उनको लोकली डेवलप करना शुरू करते हैं। वी आर ट्राइंग टू प्रमोट इंडिजनाइजेशन, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज़ कि आपने इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी अचीव करनी है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तैयार करदा जदीद गन्स और एंटी टैंक बुलेट्स भी नुमाइश का हिस्सा हैं, जो अपनी इंफरादियत की वजह से तवज्जो का मरकज बन रही हैं। इस दफ़ा हमने 3 किस्म की नई राइफलें लॉन्च की है। नॉर्मली हम TUT करते हैं। TUT फॉर अ वेपन तकरीबन $800-900 मिलियन की कॉस्ट लेता है। ये ख़ुद पाकिस्तान के अंदर इंडिजिनसली डेवलप करने से फ़ायदा ये हुआ है कि हम वो $800-900 मिलियन जो हम किसी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पे लगाते वो बच गए हैं। दूसरा ये है कि चूँकि ये हमारा अपना बना डिज़ाइन है तो ये हम थर्ड पार्टी को सेल भी कर सकते हैं एज अ वेपन और इवन एज अ टेक्नोलॉजी। तरक्की और जिद्दत के लिए खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर गामजन पाकिस्तान की दिफाई सनत इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ रही है, और आइडियाज़ नुमाइश पाकिस्तान की मकामी सनत की ऐसी काविशों को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने में अहम किरदार अदा कर रही है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर ने दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का दौरा किया और नुमाइश में पेश की गई जदीद टेक्नोलॉजीज़ का जायज़ा लिया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने मुल्की सतह पर एरोस्पेस, साइबर सिक्योरिटी, IT, मसनूई जहानत और क्वांटम कंप्यूटिंग के शोबों में मौजूद और नई टेक्नोलॉजीज़ की तैयारी को फ़रोग़ देने के मंसूबों पर रोशनी डाली। इस मौके पर एयर चीफ की मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद से मुलाकातें हुई। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स और कमांडर आज़रबाईजान एयरफोर्स से अलग अलग मुलाकात हुई, जिनमें पेशावराना उमूर और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ में जदीद गैर मुल्की हथियारों के साथ मकामी सतह पर तैयार होने वाले ड्रोन्स और सबसोनिक क्रूज मिसाइल भी पेश किए गए हैं। ज़ीशान अहमद तफसील बता रहे हैं। मुल्क में तैयार करदा जदीद तरीन ड्रोन्स भी आइडियाज़ 2022 का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सोल्यूशन की जानिब से कसीरुल मकासिद जदीद ड्रोन्स अबाबील, शाहपर 2 और जदीद तरीन सबसोनिक क्रूज मिसाइल हरबा भी नुमाइश में रखे गए हैं। ये तीनों जदीद तरीन डिफाई टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का मुंह बोलता सबूत हैं, जिसके जरिए न सिर्फ अपने हदफ को 100% मुकम्मल बासानी निशाना बना सकते हैं, बल्कि रडार पर भी नजर न आने की सलाहियत रखते हैं। मकामी तौर पर तैयार करदा जदीद ड्रोन्स असलहा और बम से हदफ को निशाना बनाने के साथ साथ हालात अमन में आग बुझाने और हजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले फेंकने की भी सलाहियत रखते हैं। सबसोनिक क्रूज मिसाइल हरबा मकामी तौर पर गिट्स ने तैयार किए हैं। कंपनी के CEO का कहना है कि मिसाइल रडार लेस के अलावा जिग जैग और अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए मुख्तलिफ जावियों से तब्दील करने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज है तकरीबन 290 किलोमीटर और आप इसको शिप से लॉन्च कर सकते हैं, आप इसको हार्बर कोस्ट से लॉन्च कर सकते हैं। ये एक बड़ी मुनफरद कैपेबिलिटी है। इसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना, इसको प्रीएम्प्ट करना, तबाह करना बहुत मुश्किल होता है। कसीरुल मकासिद ड्रोन्स जंगी और गैर जंगी दोनों हालात में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दिफाई मसनूआत की पैदावार के सबसे बड़े मुल्की इदारे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के तैयार करदा अबाबील सीरीज के ड्रोन्स खास तौर पर मार्टर बम गिराने में महारत रखते हैं। हमारे अबाबील स्टैंडर्ड के ड्रोन्स हैं, इसमें हमने डिफरेंट पेलोड कैपेसिटी के मुताबिक ये ड्रोन्स बनाए हुए हैं और जो मिलिट्री स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक है इंटरनेशनली। बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 में गैर मुमालिक के मंदूबीन ने मुल्क की दिफाई सनत की पैदावार को न सिर्फ सराहा है, बल्कि इस नुमाइश में मुल्क की दिफाई सलाहियतों का भरपूर एतराफ़ किया है। Manufacturing everything from low cost ammunition to highly sophisticated cruise missiles to big UAVs to solutions for communications, artificial intelligence applied in everything. So there is a big prospect in Pakistan. You have all kind of
products. आइडियाज 2022 में जहां बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्की दिफाई सनत को भरपूर उजागर करने का मौका मिला है, वहीं मकामी तौर पर तैयार करदा दिफाई साजो सामान को बैनुल-अक़वामी मार्केट में पजीराई हासिल हो रही है। अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए हमारे जवान बहादुर दिलेरी के साथ साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी सफ़े अव्वल में हैं। शान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, एक्सपो सेंटर, कराची। और दिफाई नुमाइश आइडियाज़ के दूसरे दिन दिफाई सामान की खरीदारी से मुतालिक मुख्तलिफ याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन। स्मार्ट मॉनिटरिंग और दिफा में सिक्योरिटी के चैलेंजेस के उन्वान पर आइडियाज के दूसरे दिन पाकिस्तानी माहिरीन ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मसनूई जहानत के जरिए जहां जदीद अंदाज में सिक्योरिटी को तहफ़्फ़ुज़ मिला है, वहीं नित नए चैलेंजेस भी शामिल हो रहे हैं और इन सब उमूर के लिए दिफा से मुंसलिक लोगों का टेक्नोलॉजी पर उबूर रखना अशद ज़रूरी है। मुक़र्ररीन ने कहा कि किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी उसके अंदरूनी इस्तेहकाम और मरबूत दिफाई सिस्टम पर मुनहसर करती है और इसके लिए दिफाई अंदाज से मुतवाज़न होना वक्त की अशद ज़रूरत है। दूसरी जानिब दिफाई नुमाइश के दूसरे दिन भी बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की विजिटर्स ने हरबी साजो सामान के स्टॉल्स का दौरा किया और मुख्तलिफ दिफाई मसनूआत के बारे में मालूमात के तबादला ख्याल के साथ साथ मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ने भी नुमाइश का दौरा किया, जबकि नुमाइश के इनेकाद को मुख्तलिफ शुबेजात के लोगों ने सराहा। फॉरेन डेलीगेट्स पहले से ज़्यादा आ रहे हैं और इस बार भी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान आए हैं और ये इस बात की नवीद है कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है और हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं। हमारी जो हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला है उसके साथ बहुत सारे लोगों का अभी तक जो है वो काफ़ी सारी फॉरेन कंट्रीज़ के MOU साइन हो चुके हैं। ये हमारी इकनॉमी को बेहतर करेंगे और हमारी दिफाई जो ताकत है वो तो मज़ीद मजबूत होती जा रही है। टेक्नोलॉजी पार्क बेसिकली है ही इसलिए कि यहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वर्ल्ड की उसको डिस्प्ले किया जाए, एग्जिबिट किया जाए और उससे एकेडेमिया हमारे स्टूडेंट्स उससे बेनिफिट उठाएं। इस आइडियाज़ में हमने कोई 10-11 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमने न्यू लॉन्च किए हैं। हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने उन पर वर्किंग करके उनको लॉन्च किया। माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। इससे पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है दुनिया में। पाकिस्तानी पवेलियन में दिफाई नुमाइश के दूसरे दिन भी विजिटर्स की गैर मामूली दिलचस्पी बरकरार रही। आइडियाज़ के दूसरे दिन भी खासी गहमा गहमी रही, जबकि बैनुल अक़वामी वफूद ने पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान में गहरी दिलचस्पी ली, जबकि दूसरी जानिब सेमिनार का सिलसिला भी जारी रहा। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, एक्सपो सेंटर, कराची। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। हमारा रहबर सबसे बेहतर। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। यहाँ पर आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कराची में मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रेक्यूडिक मुआहदे से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के रूबरू दलाल देते हुए बलूचिस्तान हुकूमत के वकील सलाहुद्दीन अहमद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेक्यूडिक मुआहदे से सूबे को 25% सरमाया, 5% रॉयल्टी और रोजगार के मौके दस्तयाब होंगे और सूबे को 47 साल में $32 अरब का सरमाया मिलेगा। अदालत को बताया गया कि 15 दिसंबर तक मुआहदा न हुआ तो गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मजाज होगी। अदालत उस्मा ने नैब ऑर्डिनेंस के बाद अब तक रेफरेंसेस में होने वाली तमाम सजाओं का 18 नवंबर तक रिकॉर्ड तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2012 का तौहीन अदालत का कानून बुनियादी हकूक से मुतसादिम होने पर कानून साजों की अदम काबिलियत के बाइस कलअदम करार दिया। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट ख्वाजा हारिस पर वाज़ेह किया कि तौहीन अदालत का कानून पार्लियामेंटेरियंस की अदम काबिलियत की बिना पर नहीं बल्कि जानिबदार होने के बाइस कलअदम करार दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत ने बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी पर कानून साजी मुस्तरद की, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि पार्लियामान में काबिलियत नहीं। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत कल फिर होगी। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरखास्त की कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सेनेटर कामरान मुर्तजा की दरखास्त की समाअत करेगा।
चेयरमैन PTI इमरान खान ने तौहीन अदालत से मुतालिक मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। उन्होंने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 25 मई की शाम अदालती हुक्म से आगाह नहीं किया गया था। इस शाम कारकुनों को वीडियो पैगाम सियासी मालूमात पर जारी किया गया। एहतजाज के दौरान जैमर्स के बायस मोबाइल के जरिए राब्ता मुमकिन नहीं था। मुझे बहुत बाद में बताया गया कि असद उमर ने जलसे के लिए H9 और G9 के दरमियान वाक़े मैदान के लिए हिदायत जारी की थी। PTI एहतजाजी धरनों के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत हुई। अदालत ने DG, IB एडिशनल सेक्रेटरी और वजारत दाखिला और IG मोटरवे से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने CPO और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को हुक्म दिया कि धरनों की वजह से आवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। अदालत ने समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और तुर्क हम मनसब मेवलद चावशओगलू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्तांबुल हमले पर इजहार अफसोस करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तुर्किया के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत समत पर इजहार इत्मीनान करते हुए खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और मुख्तलिफ शुबों में ताउन के फ़रोग़ के मुश्तरका आज़म को दोहराया। इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए खारजा उमूर की वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी घर ने कहा कि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना हमारी खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि भारत में बढ़ती हिंदू इंतहा पसंदी जनूबी एशिया और दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा बन रही है। तफसील बता रहे हैं राना शहजाद सलाम। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा मारगला डायलॉग की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ममलकत खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा कि दुनिया एक नई सर्द जंग की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आलमी तनाज़ात का हल ताकत की बजाय सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात में है। हिना रब्बानी खर ने कहा कि गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी का दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। People of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and the Muslim minority of India have borne the brunt of this agenda for far too long now, and just because the people have been going through gruesome state brutality for 70 years, therefore the world is no more obliged to look towards their distress. Universal application of all values, universal application of rules based order, that's the message of the developing world to the developed world. वज़ीर ममलकत खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम और इलाकाई रवाबत का अलमबरदार है। उन्होंने कहा कि CPEC इलाकाई रवाबत के हवाले से गेम चेंजर है। हिना रब्बानी खर ने कहा कि आलमी बरादरी अफगान अवाम को तनहा मत छोड़े। खजाने की वज़ीर ममलकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने कहा कि आलमी बरादरी मौसमियाती तब्दीलियों से आने वाली तबाही से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। Short-term economic stability, structural adjustment with human face, our commitment to our international support agencies like the IMF and the development agencies stands totally committed, and we realize that in these times of global economic crisis, while we are looking towards the global community to help us out because we've been victims of things that we are not responsible for, particularly when it comes to climate change. पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर ने अपने खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से आने वाले मसाइल का हम सब को मिलकर मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ आबादी में बेहद इजाफा भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसके लिए दुनिया को सोचना होगा। Environmental stresses, obviously a massive issue that has driven to the forefront of the agenda here in Pakistan with the floods. I would add simply one statistic that 70% of Pakistan's GDP is reliant on agriculture, and most predictions have the Indus River Basin losing about a quarter of its available water in the next 20 years. That brings a really stark sense of the kind of challenges a country like Pakistan faces, even if we manage to get through the floods recovery. The final one I would put on the list is something I don't think we talk about enough, which is demographics and population growth. मुख्तलिफ गैर मुल्की मुकर्रीन ने अपने वीडियो लिंक खिताब में कहा कि पाकिस्तान की खित्ते में बड़ी अहमियत है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर एक मुत्तफिका लाहे अमल अपनाना होगा। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
नाज़रीन, गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारत की फस्ताई मोदी हुकूमत ने शहरी आबादी के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत हार्ड जेल में गैर कानूनी नज़रबंद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान ने एक पैगाम में कहा है कि कश्मीरी आवाम को अपना आलमी तौर पर तस्लीम शुदा हक़ के खुद इरादियत का मुतालबा करने पर बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी से अपील की कि वो भारत पर दरीना तनाज़ कश्मीर के पायदार हल के लिए ठोस इक़दाम करने के लिए दबाव बढ़ाएं। जम्मू और कश्मीर मुस्लिम लीग ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि भारत ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट समेत कश्मीरी अवाम को वहशियाना मजालिम का निशाना बनाया। भारत की जानिब से काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट 39 मरतबा लागू किए जाने के बावजूद मुसर्रत आलम भट्ट कोई समझौता न करने और हर कीमत पर जद्दोजहद आज़ादी जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। भारतीय पुलिस ने तलाशी कार्रवाइयों के दौरान श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार नौजवानों की गैर कानूनी हिरासत का जवाब पेश करने के लिए उन्हें एक मुजाहिद तंजीम का रुकन करार दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने इस्लामाबाद में जारी एक बयान में G20 ममालिक पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करें। खारजा उमूर के बारे में सेनेट की मजलिस कायमा का इजलास चेयरमैन फारूक एच नाइक की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ तमाम आलमी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद कर रहा है। सेक्रेटरी खारजा ने बताया कि आलमी बिरादरी को भारतीय मजालिम से आगाह करने के लिए तमाम सिफारत खान इकदाम कर रहे हैं। इजलास को खलीजी मुल्कों में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत को दरपेश मसाइल के हल के लिए काविशों के बारे में भी ब्रीफ किया गया। नाज़रीन, बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द भी मारा गया। ISPR के मुताबिक 15 और 16 नवंबर की दरमियानी रात सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में हलाक होने वाला दहशतगर्द दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मारे जाने वाले से दहशतगर्द से हथियार और बारूद भी बरामद किया। ताहम फायरिंग के शदीद तबादले में कोहाट के रिहायशी 33 साला नाइक ताज मोहम्मद और मालाकंड के रिहायशी 30 साला लांस नाइक इम्तियाज खान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जा रही हैं। पेशावर में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के ज़रिए तमाम अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मुकर्रिरीन ने कहा कि मखसूस सियासी जत्था अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ गलीज़ जुबान इस्तेमाल करता है जिसकी पूरी कौम मजम्मत करती है। बन्नू में भी अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली निकाली गई। शहरियों का कहना था कि पाक फौज और हसास इदारों की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं, वो अपनी पाक फौज के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की बिला वजह मुखालिफत बंद की जाए। गुजरात में कशीर मूवमेंट के ज़रिए एहतमाम अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। मुकर्रिरीन का कहना था कि पाक फौज इस मुल्क की मुहाफिज है। बाज़ सियासी अनासर की जानिब से मनफी प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। वजीराबाद में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली का एहतमाम किया गया जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की भरपूर मजम्मत करते हुए इसे बैरूनी दुश्मनों का एजेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। ठट्ठा में पाक फौज की हिमायत में एक रैली मखली पाक से नेशनल प्रेस क्लब तक निकाली गई। मुकर्रिरीन ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि वतन अजीज के लिए पाक फौज की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं और हमें अपनी फौज पर फख्र है। गोचर खान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान ने दोस्त मुल्कों से मिलने वाले कीमती तहाइफ को बेचकर मुल्क की वकार का मजाक बना दिया। समीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। वर्कर कन्वेंशन से खिताब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान की नाकिस पॉलिसियों से मुल्क दिवालियापन के धाने पर पहुंचा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत न सिर्फ मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है बल्कि मुल्क भर में तरक्याती काम भी भरपूर अंदाज में जारी हैं। एक तकरीर में भी आप ये बात नहीं सुनेंगे कि इमरान खान को ये बता सके कि मैंने पाकिस्तान के अंदर ये मंसूबा शुरू किया है। नवाज शरीफ के कामों की फहरिस्त है कि ख़त्म होने को नहीं आती। ये सियासत का फ़र्क है। हमारी सियासत का एक ही मकसद रहा कि पाकिस्तान के अवाम के लिए तरक्की हो, मुल्क आगे बढ़े, पाकिस्तान के अवाम की तकालीफ में कमी हो।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की खारजा पॉलिसी को शदीद नुकसान पहुंचाया और दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए। एक हाकिम ने इस पाकिस्तान को कुछ तोहफे दिए, सारे का सारा अपने घर ले गया। चलो तू घर ले जाता, कोई बात नहीं थी। उसी तोहफे को बाजारों में बेचा। रावलपिंडी की तामीर और तरक्की की, जिनमें नए हॉस्पिटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, खेलों के मैदान है, सफाई का निजाम है, पार्क हैं और मेरे बच्चों और बच्चियों के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। वर्कर कन्वेंशन से खिताब में दूसरे मुकर्रीन का कहना था कि पीटीआई ने मुल्क में तशद्दुद और इंतशार की सियासत को आम किया है। मुस्लिम लीग नून इक़दार की सियासत को फरोग दे रही है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि दुबई के खरीदार का बयान सबूत है कि इमरान न्याजी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम है। सरकारी सादिक और अमीन मुसल्लिमा झूठा होने के बाद घड़ी चोर भी साबित हो चुका है। एक बयान में हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि रियासत मदीना के दावे करने वाले चोर की असलियत पूरी दुनिया को मालूम हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम साबित होने पर हुकूमत इमरान न्याजी को कंटेनर से उतारकर जेल पहुंचाए। उन्होंने कहा कि दुबई के खरीदार के बयान की रोशनी में तोशा खाना केस का फैसला किया जाए और एक साबित शुदा चोर को कानून के कटहरे में लाकर हिसाब लिया जाए। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर कहते हैं कि इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो जियो, शाहजेब खानजादा और घड़ी खरीदने के दावेदार के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा करेंगे। उनका कहना था कि दावा करना एक बात, साबित करना दूसरी बात है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और पीटीआई ने मेरे खिलाफ हत्या की इज्जत के 3 मुकदमे किए, तीनों में सुरखरू हुआ। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने बताया कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर के गैर कानूनी इस्तेमाल का केस फाइनल करके रिकवरी के लिए फहरिस्त रेट लगाकर सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। नाज़रीन, पोलैंड में यूक्रेनी सरहद में मिसाइल गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। रूस ने ये मिसाइल अपनी सरजमीन से दागे जाने से मुतालिक तमाम शुबहात को मुस्तरद कर दिया है। इस वाक़े के बाद कशीदगी की नई लहर पैदा हो गई है। पोलिस सदर ने कहा है कि इस बात का गालिब इम्कान है कि यह मिसाइल यूक्रेन के एयर डिफेंस निज़ाम से फायर किया गया हो। नाटो, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया का कहना है कि मिसाइल हमले के हवाले से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इस मामले पर पोलैंड की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है। मिसाइल वाक़े के मुहर्रिकात के हवाले से नाटो का अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि यूक्रेन जंग को मजीद फैलने से रोकना बहुत ज़रूरी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वाक़े के फौरी बाद नाटो और G7 के रहनुमाओं से हंगामी बातचीत की और इस मामले की तहकीकात के लिए पोलैंड की हिमायत के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि इस बात का इम्कान कम है कि यह मिसाइल रूस की जानिब से फायर किया गया हो। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले जारी हैं। दारुल हुकूमत कैफ समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद मिसाइल दागे गए। कीरसन के इलाके से इनखला के बाद रूस का ये बड़ा फजाई हमला था। इन हमलों में कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। लॉव्यू शहर का 80% इलाका बिजली से महरूम है। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब के बाद मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -9, काला -4, बाबूसर -3, अस्तूर, स्कर्दू -2, बगरोट और रावलाकोट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 9, लाहौर 12, कराची 19, पेशावर 8, कोयटा 1, गिलगित 3, मुजफ्फराबाद 6, मरी 4, दीर 3, चतराल 1, रावलाकोट -1, मालम जब्बा 0, फैसलाबाद 12, मुल्तान 11, सरगोदा 12, श्रीनगर 2, जम्मू 12, लेह -9, पुलवामा 7, अनंतनाग 7, शुपियां 3 और बारामूला में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के बाद कौमी खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। कप्तान बाबर आजम, आसिफ अली, लेग स्पिनर उस्मान कादिर, फास्ट बॉलर नसीम शाह लाहौर पहुंचे। चेयरमैन PCB रमीज राजा और टीम मैनेजर मंसूर राना भी टीम के हमरा वतन वापस पहुंचे। एयरपोर्ट पर शायकीन और PCB हुकाम ने खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इस्लामाबाद अपने घर पहुंचे तो इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। हारिस रऊफ के अहले खाना और दोस्त अहबाब ने इन्हें खुशामदीद कहा। हारिस के घर के बाहर मदाहों ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के आगाज में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। मेगा इवेंट के लिए टीमों की कतर आमद और ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। तफसील जानते हैं मोहम्मद यूनस से। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से कबल कतर में गहमा गहमी जारी है। दोहा में खूबसूरत फुटबॉल मुजस्समे की रोनुमाई कर दी गई है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए टीमों की कतर आमद का सिलसिला भी जारी है। इंग्लैंड और नेदरलैंड्स की टीमें दोहा पहुंच गई हैं। मराकश की टीम ने दोहा में फैंस से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल टीम ने दोहा में वॉलंटियर्स के साथ, जबकि अमेरिकी टीम ने अल रयान में वर्ल्ड कप वर्कर्स के साथ ट्रेनिंग की। 5 मरतबे की चैंपियन ब्राजील इटली में, अर्जेंटीना की टीम अबू ज़ेबी में, जबकि जर्मनी की टीम ने ट्रेनिंग के लिए ओमान में डेरे डाल रखे हैं। दिफाई चैंपियन फ्रांस की टीम ने कतर रवानगी से कबल पेरिस के करीब प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कप्तान होगो लोरिस, स्टार फुटबॉलर एम्बापे, करीम बेंजेमा, एंटोनी ग्रीजमैन समेत दीगर खिलाड़ियों ने शिरकत की। इवेंट से कबल दिफाई चैंपियन को दशका लगा है। मिडफील्डर पॉल पोग्बा और निगोलो कांडे के बाद अब फॉरवर्ड खिलाड़ी क्रिस्टोफर इनकोनको भी इंजरी के बायस मेगा इवेंट से बाहर हो गए हैं। 32 टीमों पर मुश्तमिल आलमी कप 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर के 8 स्टेडियम में शेड्यूल हैं। मोहम्मद यूनस, पाकिस्तान टेलीविजन Just like a waving flag. और अब कुछ बात करते हैं दोहा में फुटबॉल शायकीन को वर्ल्ड कप ट्रॉफी देखने का मौका फराहम किया गया। मकामी और इंटरनेशनल शायकीन ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाई। दुनियाई खेल की कीमती ट्रॉफी को सिक्योरिटी गार्ड्स की निगरानी में पब्लिक पार्क में शीशे के केस में रखा गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को दुनिया के 51 ममालिक का टूर कराया गया। ट्रॉफी का डिज़ाइन 1974 के वर्ल्ड कप से मिलता जुलता है। 1976 में मगरबी जर्मनी ने मेगा इवेंट की मेज़बानी की और टाइटल भी अपने नाम किया। दोस्ताना फुटबॉल मैच में नेपाल ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 गोल से हरा दिया। काठमांडू के दशहरात स्टेडियम में खेले गए मैच का पहला हाफ बगैर गोल के गुजरा। 83वें मिनट में नेपाल के अनजान बोस्टा ने गोल करके नेपाल को बर्तरी दिलाई, जो आखिर तक बरकरार रही। पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने 3 साल के वक्फे के बाद कोई बैनुल-अक़वामी सतह पर मैच खेला है। स्पोर्ट्स डे से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया शफीक। नाज़रीन, के साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।